Hello and good morning, students. Welcome to our online session of social science. So, students, this is the fourth part of the chapter first of our economics book, that is the story of village Palampur. So, students, let's recall the first what we did till now. We read about the well connectivity of village Palampur. It means ki Palampur, it is an imaginary story. It is an imaginary story, and in this story we have read about the well connectivity of the village, and we also read about the organization of production as labor, land, physical capital, enterprise. These all are the factors of production, and these are the very necessary part of the production. And afterwards, we discussed and understood about the farming in Palampur. That farming is the main production activity in Palampur, means that 75% of the people who are working are dependent of farming for their livelihood. And we also read about the other activities in village Palampur like dairy farming and so on. And afterwards, we were discussing about the farming in Palampur. In this, we discussed about the 3 points. And today we will move further with the fourth point from the page number 5 with its continuation. So students, now the point is very important point. So fourth number point we will discuss now, and the name of the point is how is land distributed between the farmers of Palampur. So students, in this topic we will discuss about the land distribution. It means कि जो पालमपुर में जो land है वो farmers के बीच में किस तरीके से distribute किया जाता है. So let's begin the chapter with its continuation. So students, you must have realized that how important land is for farming. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा और आपने ये जाना कि जो लैंड है वो कितना इंपॉर्टेंट है फार्मिंग के लिए. अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. So students, unfortunately not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. तो अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो सभी लोग वो एग्रीकल्चर में जो इंगेज रहते हैं उनके पास सफिशिएंट लैंड नहीं होता ताकि वो कल्टीवेशन कर सकें. In Palampur, about 1/3 of the 450 families are landless. It means कि that is 150 families, most of them Dalits have no land for cultivation. तो देखा जाए तो पालमपुर में जो 1/3 है, मतलब जैसे पालमपुर में 450 फैमिलीज है, तो 450 का अगर हम 1/3 निकालेंगे तो आपका आएगा जस्ट लगभग 150. तो जो 150 फैमिलीज अगर है वहां पर 150 फैमिलीज जो है वो कैसी है, लैंडलेस है, जिनके पास जमीन नहीं है, और जिनमें से मोस्ट ऑफ जो कौन है वो दलित्स हैं जिनके पास कल्टीवेशन के लिए लैंड मतलब भूमि नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है पालमपुर में देखने को मिलता है. ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज who own land, 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size. तो अगर रिमेनिंग फैमिलीज की बात करें, बची हुई फैमिलीज की बात करें जिनके पास लैंड है, भूमि है, मतलब ऐसे लोग जिनके पास जमीन है खेती करने के लिए, तो 240 फैमिलीज जो है वो स्मॉल प्लॉट में कल्टीवेशन करती है जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम के जमीन होती है, 2 हेक्टेयर से भी कम साइज की जमीन होती है. ठीक है. सो कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू देयर फैमिली. मतलब इतनी कम जमीन पे इतने कम प्लॉट पे खेती करने से उनको कोई फार्मर्स को कोई इतनी अच्छी ज्यादा इतनी पर्याप्त मात्रा में इनकम नहीं हो पाती है. सो एक केस है 1960 स्टडीज, केस स्टडी हम इसे रीड करेंगे. So in 1960, Govind was a farmer with 2.25 hectare of largely unirrigated land. तो देखा जाए तो 1960 में गोविंद एक फार्मर था जिसके पास 2.25 हेक्टेयर का एक लार्ज अनइरिगेटेड लैंड था. विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोविंद कल्टीवेटेड द लैंड. तो अपने 3 बेटों की मदद से गोविंद ने अपने लैंड को कल्टीवेट किया. दो दे डिड नॉट लिव वेरी कंफर्टेबली, the family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. मतलब वो इतना ज्यादा कंफर्टेबल ही नहीं रहते थे, वो जाने कैसे तो बड़ी मुश्किल से अपने आप को
खाना वगैरह खिला पाते थे, मैनेज कर पाते थे खाना वगैरह, और कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा इनकम थोड़ी बहुत उनको हो जाती थी क्योंकि उनके पास एक बफेलो भी थी। Some years after Govind's death, this land was divided among the three sons. तो कुछ समय के बाद गोविंद की डेथ हो जाती है और उसकी जो जमीन है, उसका जो प्लॉट है, वो तीन बेटों में डिवाइड हो जाता है। Each one now has a plot of land that is only 0.75 hectare in size. तो जो अब उसके जो प्लॉट था, मतलब जो 2.25 हेक्टेयर का जो प्लॉट था, वो तीन बेटों में बढ़ जाता है और हर एक बेटे को 0.75 हेक्टेयर साइज में मिलता है। So even with improved irrigation and modern farming method, Govind's sons are not able to make a living from their land. So मतलब इतने improved irrigation, modern farming methods के बाद भी गोविंद के जो सन हैं, जो बेटे हैं, वो बहुत मुश्किल से ही उस लैंड पे कुछ काम कर पाते हैं, अपनी लिविंग निकाल पाते हैं, अपनी जिंदगी को चला पाते हैं। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर, और उन्हें इस वजह से किसी और कुछ पार्ट टाइम और वर्क करने की भी जरूरत पड़ जाती है उनको एक्स्ट्रा में। तो इस अकॉर्डिंग हम गोविंद की स्टोरी से समझ सकते हैं किस अकॉर्डिंग उसे ये प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है। इट मींस कि देखा जाए जैसे कोई आदमी है जिसके पास अगर 5 हेक्टेयर की जमीन है, तो उसकी जो 5 हेक्टेयर की जमीन जो होगी वो 5 बेटे हैं जैसे उसके, तो ये 5 बेटों में बढ़ जाएगी। अब जैसे किसी एक बेटा उसके 3 बेटे हैं, तो उसकी 1 हेक्टेयर उन तीनों में बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं जैसे स्टार्टिंग में जो फार्मर थे उनके पास बहुत बड़ी जमीन थी, लेकिन आते आते टाइम होते होते वो काफी जमीन बढ़ बढ़ के बहुत कम हो जाती है और आखिर में बिल्कुल न के बराबर जमीन जो है वो बचती है। तो इससे उनकी इनकम पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, so students, you can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर देख सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स हैं जो इस विलेज के चारों तरफ स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। सो दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स, जिन्हें स्मॉल फार्मर्स के द्वारा कल्टिवेट किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय द प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। तो उसके जस्ट दूसरे साइड अगर आप देखें तो मोर देन हाफ जो एरिया है विलेज का वो कवर है जो ऐसे प्लॉट्स है जो काफी लार्ज एरिया में। इन पालमपुर देर आर 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. So पालमपुर में ऐसी 60 families हैं मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं जिसमें जो कहीं ना कहीं 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन को कल्टीवेट करते हैं। A few of the large farmers have land extending over 10 hectares or more. और इसमें से कुछ फार्मर्स ऐसे भी हैं, लार्ज फार्मर्स हैं जो कहीं ना कहीं 10 हेक्टेयर है उससे ज्यादा का लैंड जो है उनके पास है अभी भी। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस पिक्चर को एनालाइज करें, इस पिक्चर में देखें, दिस इज द पिक्चर ऑफ विलेज पालमपुर। हियर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड लैंड। तो यहाँ पर कल्टीवेटेड लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। तो अगर आप प्लॉट के एक साइड देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े प्लॉट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मींस कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्लॉट है वो बड़े बड़े साइज के हैं, मतलब लार्ज साइज के हैं। और अगर आप इस वाले साइड में अगर आप देखें वन साइड में, तो यहाँ पर छोटे छोटे प्लॉट्स हैं वो बहुत ज्यादा है। स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स की जो संख्या है वो यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन बड़े बड़े प्लॉट्स की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस अकॉर्डिंग ये पिक्चर आपको दी गई है। सो आपको ये देख सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे जो गांव हैं, छोटे छोटे जो प्लॉट्स हैं वो स्कैटर्ड हैं एक साइड में, और कहीं ना कहीं उनको स्मॉल फार्मर्स कल्टीवेशन करते हैं, और जो बड़े वाले प्लॉट्स हैं उनको जो दूसरे फार्मर्स हैं वो कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं लार्ज है। 60 फैमिलीज हैं जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स इनको वो कल्टीवेट करते हैं 2 हेक्टेयर से ज्यादा वाले प्लॉट्स को। तो हम देख सकते हैं कि जो कुछ लोग हैं लार्ज फार्मर्स, उनके पास 10 हेक्टेयर या उससे ज्यादा की भी जमीन हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लैंड का किस तरह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन सी कि जो फार्मर्स है उनके बीच में जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी के पास 0.75 है, किसी के पास 0.25, किसी के पास 0.3 है। तो इस अकॉर्डिंग ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमें प्लॉट्स का देखने को मिलता है। नाउ द पिक्चर 1.6, तो पिक्चर 1.6 हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक जो पिक्चर दी गई है इसमें देखो अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं। सो अगर हम देखें इस पिक्चर को एनालाइज करें, वर्क ऑन द फील्ड्स, wheat crop, plowing by block, sowing, spraying of insecticide, cultivation by traditional method, cultivation by modern method and cutting of crops। तो ये देखें, तो अगर हमें देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कल्टीवेशन बाय मॉडर्न मेथड। तो मॉडर्न मेथड के द्वारा यहाँ पर कल्टीवेशन किया जा रहा है, ये ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा कल्टीवेशन किया जा रहा है, ये स्प्रेइंग की जा रही है। तो इस अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वहां पर परफॉर्म की जा रही है। सो स्टूडेंट्स, इस पिक्चर को हम देख सकते हैं अच्छी तरीके से। इसके बाद आगे का डिस्कस करेंगे। ये आपका दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
कल्टिवेटेड एरिया इन फार्मर्स। तो ये कल्टीवेटेड एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पर नंबर ऑफ फार्मर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम इस पाई चार्ट की मदद से देख सकते हैं। और जो डार्क कलर है वो आपको बता रहा है मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं, और जो लाइट कलर है वो आपको बता रहा है मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं। मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स जो है वो लेस देन 2 हेक्टेयर है, और मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो है वो मोर देन 2 हेक्टेयर्स हैं। तो कितना किसका परसेंटेज है वो हम इस पाई चार्ट के थ्रू समझेंगे। तो कल्टीवेटिव एरिया का अगर हम देखें तो कल्टीवेटेड एरिया में 55.4% 55.4% जो है मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं जो लेस देन 2 हेक्टेयर है, और 44.6 जो है हमारे मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं जो मोर देन 2 हेक्टेयर्स हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ फार्मर्स अगर हम देखें, नंबर ऑफ फार्मर्स में अगर हम देखें तो इसमें भी यही है, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स में लेस देन 2 हेक्टेयर पे जो खेती करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर कितना है 15% है। और अगर मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की बात करें तो वो कितना है आपका 85% है जो 2 हेक्टेयर से ज्यादा पे खेती करते हैं, मोर देन 2 हेक्टेयर मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। तो दिस इज द डेटा पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2017 एंड स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 2017 डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा ये डेटा दिया गया है, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर एज पर एग्रीकल्चर सेंसस 2010 एंड 11 का अकॉर्डिंग ये डेटा दिया गया है। So students, now we will discuss about the next point, that is who will provide the labor, means कि labor कौन provide करेगा। So after land, labor is the next necessary factor for production। तो लैंड के बाद हम जानते हैं कि सेकंड जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है आपका लेबर है। लेबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। इट मीन्स कि फार्मिंग के लिए हमें काफी ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत पड़ती है। स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन फील्ड्स। जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ अपने फील्ड पे कल्टीवेशन करते हैं। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स। इट मीन्स कि वो खुद से ही अपने फार्मिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है, लेबर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो खुद से ही पूरा कर लेते हैं। सो मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देयर लैंड। सो और जो मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो हायर करते हैं, बाहर से हायर करते हैं फार्म लेबर्स को, ताकि उनके फील्ड में वो लोग काम कर सकें। सो स्टूडेंट्स, नाउ इस अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, फार्म लेबरर्स come either from landless families or families cultivating small plot of land। So students, जो फार्म लेबरर्स होते हैं यहाँ तो वो लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, या तो वो छोटे छोटे जो भूमि होती है, छोटी छोटी जो जगह होती है, एरियाज होते हैं, उन प्लॉट्स पे वो कल्टिवेटिंग करते हैं। Unlike farmers, farm laborers do not have right over the crops grown on the land। So students, यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट दिया है, जो फार्म लेबरर्स होती है, जो वो उस भूमि पर जो भी खेती करते हैं, जो भी क्रॉप्स को वो उगाते हैं, वहां पर ग्रो करते हैं, उन क्रॉप्स पर उनका कोई अधिकार नहीं होता। वो सिर्फ एक फार्म लेबरर्स की तरह वहां पर काम करते हैं। इंस्टीड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर हुम दे वर्क। और जिसके लिए काम करते हैं इसके लिए उन्हें वेजेस मतलब मजदूरी जो होती है, जो लेबरिंग होती है, सैलरी वो पेड की जाती है। वेजेस कैन बी इन कैश और काइंड ऑफ एग्जाम्पल क्रॉप। वेजेस कैश में भी हो सकती है और एग्जाम्पल किसी क्रॉप के रूप में भी हो सकती है, मतलब काम के बदले अनाज दे दिया जाता है। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो, कभी कभी उन्हें खाना भी मिल जाता है। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, हर क्षेत्र दर क्षेत्र, रीजन टू रीजन जो उन्हें मजदूरी मिलती है वो अलग अलग होती है। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, हर क्रॉप के लिए अलग रहती है। फ्रॉम वन फॉर्म एक्टिविटी टू अनदर लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। और हर एक्टिविटी के लिए जो सैलरी मतलब जो वेजेस उन्हें मजदूरी मिलती है वो अलग अलग होती है। जैसे सोइंग मतलब बोने के लिए अलग मिलती है, हार्वेस्टिंग के लिए अलग मिलती है। देयर इज ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी कहीं ना कहीं बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। कभी काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता है ना। A farm laborers might be employed on a daily basis or for one particular farm activity like harvesting or for the whole year। It means कि जो employment में वो ड्यूरेशन में जो वेरिएशन हो तो किस अकॉर्डिंग होता है। जैसे कोई जो फार्म लेबरर्स होते हैं उनको कई डेली बेसिस पर रखा जाता है, किसी को फार्म एक्टिविटी जैसे हार्वेस्टिंग करने के लिए रखा गया है, या होल ईयर के लिए रखा गया है, पूरे वर्ष भर के लिए रखा गया है। तो इस अकॉर्डिंग उनको काम मिलता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, दाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबरर। ये एक लैंडलेस फार्म लेबरर है जो डेली वेजेस पे काम करती है पालमपुर में। ठीक है, दिस मीन्स ही मस्ट, एक आदमी है दाला,
और दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, मतलब उसको रेगुलरली वर्क के लिए ढूंढना पड़ता है, काम देखना पड़ता है। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फर्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज 300 रुपीज पर डे। और जो मिनिमम वेजेस है फर्म लेबर के लिए वो सरकार के द्वारा 300 रुपए सुनिश्चित की गई है मार्च 2017 के अकॉर्डिंग। बट दाला गेट्स ओनली 160 रुपीज, लेकिन दाला को 160 रुपीज ही मिल पाते हैं। ठीक है, अब क्यों मिल पाते हैं? देयर इज अ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फर्म लेबरर्स इन द पालमपुर, क्योंकि वहां पे जो फार्म लेबरर्स है ना पालमपुर में, उनके बीच में बहुत कंपटीशन है, बहुत हैवी कंपटीशन उनके काम के बीच में। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, तो लोग कम पैसे में काम करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। दाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली, तो दाला अपनी कंप्लेंट जो है, अपनी सिचुएशन की जो कंप्लेंट है वो रामकली से करता है, हु इज अनदर फर्म लेबरर, जो वहां पर एक और फर्म लेबरर है। बोथ दाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज, दोनों ही उस गांव के बहुत गरीब लोग हैं, दाला एंड रामकली। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इमेज दी गई थी, इस इमेज में दो फर्म लेबरर हैं जो अपनी अपनी जो सिचुएशन है, जो गांव में जो सिचुएशन है, उसको अपने अपने सिचुएशन को बता रहे हैं कि उन्हें किस अकॉर्डिंग काम मिलता है, किस अकॉर्डिंग उन्हें सैलरी करनी है। इट इज ओनली जस्ट फॉर रीडिंग, सो यू जस्ट रीड ओनली दिस पैराग्राफ। जो इनकी कॉन्वर्सेशन है यहाँ पर, द कॉन्वर्सेशन बिटवीन दाला एंड रामकली, की कॉन्वर्सेशन दी गई है दोनों के बीच में कि किस अकॉर्डिंग वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, कि उनको किस अकॉर्डिंग काम मिलता है, किस अकॉर्डिंग लेबरिंग का काम वो करते हैं, कितनी सैलरी उनको मिलती है, कितनी वेजेस वह मिलती है। तो इस अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि वो दाला एंड रामकली जो है वो पुअरेस्ट पीपल है उस गांव के। ओके स्टूडेंट्स,